Assalamu alaikum. This is Manur, your maths teacher. Welcome you all in EPSEX online support program. The book which we are using here is a new syllabus mathematics book 2 7th edition OUP, and the page number which we are discussing here are 40 and 41. Chapter name linear graphs and simultaneous linear equations. Today we discuss the topic of exercise 1.6 resources you required are a textbook and a notebook, introduction and summary of the lesson. Today we do questions related to linear graphs and simultaneous linear equations. We have two algebraic methods to solve simultaneous linear equation. Here in this class we discuss substitution method. Using the substitution method, solve each of the following pairs of simultaneous linear equation. We solve equation number 8 and 9 in today's lecture. Question number 8, part A. 2x plus 5y is equals to 12 is equation number 1, and 4x plus 3y is equals to minus 4, equation number 2. Here we apply substitution method. So firstly we get the value of x from equation number 1. So firstly we solve equation number 1. 2x is equals to 12 minus 5y. Here प्लस वाई इक्वेशन में था, अगर हम साइड कन्वर्ट कर देते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ 5y हो जाएगा. सो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या है, 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 5y. 2 and x are multiplying to each other. Here if you want to change the side of 2, so it becomes 12 minus 5y divided by 2. 2 और x जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, हम अगर 2 की साइड चेंज करना चाहें तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा. इक्वेशन नंबर आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 इट बिकम्स इक्वेशन नंबर 3. सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, जिसको अभी तक हमने कोई सॉल्यूशन उस पर नहीं अटेम्प्ट किया था. इक्वेशन नंबर 2 में हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे. Then we simplify our equation. 2 ones are 2 and 2 twos are 4. 2 ones are 2 and 2 twos are 4. So here 2 multiplied by 12 and 2 multiplied by 5. 2 multiplied by 12 it becomes 24, and 2 multiplied by 5 it becomes minus 10y. प्लस 3y एज इट इज़ हम कॉपी कर देंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में, और इज इक्वल्स टू माइनस 4y भी एज इट इज़ हम कॉपी कर देंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में. 24 यहाँ पर प्लस का था, हम जैसे ही अपनी साइड चेंज करेंगे इट बिकम्स प्लस माइनस 24. सो माइनस 24 एंड माइनस 4 बिकम्स प्लस 28. So here we apply simplification. Minus 10y plus 3 it becomes 7y, and 24 यहाँ पर पॉजिटिव है, जैसे ही हम साइड कन्वर्ट करेंगे उसकी लेफ्ट से राइट साइड पर कन्वर्ट कर देंगे 24 को, सो इट बिकम्स minus 24. Here we write it. I write it. Minus 4 minus 24. After simplification, minus 4 minus 24 becomes minus 28. माइनस 4 माइनस 24 इट बिकम्स माइनस 28. ये माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा. हेयर वी कैंसिल द साइन ऑफ बोथ साइड. सो 7y इज इक्वल टू 28. यहाँ पर 7 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. जैसे ही 7 को इज इक्वल टू के साइड पर लेके जाएंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 28 डिवाइडेड बाई 7 बिकम्स 4. How is it possible? Here we see that 28 divided by 4. So 4 ones are 4 and 4 sevens are 4. 7 is equals to 28. So we get the value of y. Now we substitute the value of y in equation number 3. So equation number 3 is x is equals to 12 minus 5y. यहाँ पर हम अपने 5 की वैल्यू को पुट कर देंगे, which is 4 divided by 2. So 5 4s is 20. So 12 minus 20. 12 minus 20. So it becomes minus 8 divided by 2.
and 2 ones are 2 and 2 fours are is equals to minus 4. So x is equals to minus 4. Here we get the value of both variables x and y. Now we write our result. The solution is x is equals to minus 4 and y is equals to 4. We always write the value of x first then y. So मैं रिपीट कर देती हूँ. आई रिपीटेड. सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, जिसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी. मीन्स हमने सारी टर्म्स, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट सारी एक साइड पर कर दी और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. जैसे ही हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसको हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसको अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया था, उसमें सब्सटीट्यूट कर दिया. जैसे ही सब्सटीट्यूट किया, सिंप्लीफिकेशन करके वी गेट द वैल्यू ऑफ y विच इज़ 4. नाउ वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 जो हमने खुद सॉल्व करी थी. जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 में अपनी y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज़ minus 4. And the solution is x is equals to minus 4 and y is equals to 4. Now we move on another question. Question number 8a. A part it's your classwork and B part it's your home task. Now we solve the question number 8 part C. We have two equations, simultaneous linear equation. 3x plus 7y is equals to 2, equation number 1, and 6x minus 5y is equals to 4, equation number 2. Here we solve equation number 1. Solving 1, then it becomes 3x is equals to, here पॉजिटिव 7y था. जैसे ही साइड चेंज करेंगे अपनी लेफ्ट साइड से राइट साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो इट बिकम्स माइनस 7y. सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाय x. सो अगर हमें 3 की साइड चेंज करनी है तो इट बिकम्स 2 माइनस 7y डिवाइड बाई 3. ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल्स टू के साइड पे कन्वर्ट होकर डिवाइड पे चला गया. नाउ इट बिकम्स इक्वेशन नंबर 3. सो फर्स्टली वी सॉल्व इक्वेशन नंबर 1, सो इट बिकम्स इक्वेशन नंबर 3. जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके उसकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, नाउ वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 विच इज़ 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4. हेयर यहाँ पर हम अपने x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे विच इज़ 2 माइनस 7y डिवाइड बाई 3. नाउ वी सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. 3 ones are 3, 3 ones are 3 and 3 twos are 6. Now 2 multiply by 2, here we multiply, 2 multiply by 2 is it becomes 4, and 2 multiply by 7 is equals to 14. Minus 5y is equals to 4 as it is, हमने next step में copy कर दिया. Now minus 14y minus 5 becomes minus minus plus, so it becomes 19y minus 19y. Here we see that minus 14y minus 5y becomes minus 19y, और प्लस 4 है इक्वल्स टू के साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो इट बिकम्स माइनस 4. सो फोर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 19y एज इट इज हमने नेक्स्ट स्टेप में कॉपी कर दिया. नाउ हेयर वी सी दैट 19 मल्टीप्लाई बाय y, बोथ आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर. अब हम क्या करेंगे, 19 को इज इक्वल्स टू के साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो रहा था y से, साइड चेंज करते ही वो डिवाइड पे कन्वर्ट हो जाएगा. 0 divided by minus 19, so if we multiply 0 divide by 0 with any number, so it becomes 0. तो 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें, वो आपको आंसर में क्या देता है, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आंसर में 0 ही फॉर्म हो जाता है. सो नाउ हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ y विच इज़ 0. अब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे अपनी वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y और सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 जो हमने खुद सॉल्व करके फॉर्म की थी. इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके जो इक्वेशन नंबर 3 फॉर्म की थी. सो हेयर वी पुट द वैल्यू ऑफ y विच इज़ 0. सो 0 माइनस 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 0, 7 मल्टीप्लाई बाय 0 becomes 0. सो हेयर वी गेट आवर आंसर विच इज़ 2 डिवाइडेड बाय 3. यहाँ पर हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, y की ऑटोमेटिकली हम फाइंड आउट कर ही चुके थे अपने प्रीवियस स्टेप्स में. सो द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 3 एंड y इज इक्वल्स टू 0. I repeat it again. Firstly we have two equations of
we solve equation number 1 and it becomes equation number 3 here, and we substitute the value of 3 in equation number 2, so we get the value of y, which is 0. Now after getting the value of y, we put the value of y in equation number 3, जो कि हमने खुद सॉल्व कर फॉर्म की थी. जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 3 में अपनी y के वैल्यू सब्सटीट्यूट किए, सो हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ x, which is 2 divided by 3. So the solution is x is equals to 2 and 2 divided by 3 and y is equals to 0. So we complete our question number 8 part C, and D, it's your home task. In equation number 9, we have two linear equations, x divided by 5 plus y plus 2 is equals to 0, and second one is x divided by 3 minus y minus 10 is equals to 0. Here we solve the equation number 1, so it becomes y is equals to minus x divided by 5 and minus 2. यहाँ पर क्या है इक्वेशन नंबर, हम यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो प्लस का 2 था, साइड चेंज करके -2 में कन्वर्ट हो जाएगा. हेयर इक्वेशन नंबर 3 में हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं. और सिमिलरली प्लस एक्स डिवाइड बाय 5 था, तो अगर हम लोग उसकी साइड चेंज करेंगे तो इट बिकम्स माइनस एक्स डिवाइड बाय 5. सो आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, सो इट बिकम्स इक्वेशन नंबर 3. जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सो हेयर वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, जिसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट भी नहीं किया होता, हम उसी में वैल्यू अपनी सब्सटीट्यूट करते हैं वेरिएबल की. सो हेयर वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y, सो इट बिकम्स x डिवाइडेड बाई 3 माइनस y की जगह पर ये y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, माइनस एक्स डिवाइड बाई 5 माइनस 2 एज इट इज, minus 10 is equals to 0. Now we solve, we simplify our equation. So x divided by 3 minus minus plus x divided by 5 minus minus plus 2 minus 10 as it is copy कर दिया, as equals to 0 भी as it is copy कर दिया. So we solve this equation here. So firstly we get take LCM, x divided by 3 plus x divided by 5. So it becomes 5x plus 3x divided by 15. जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर LCM लिया है इन दोनों टर्म्स का. So 5x plus 3y divided by 15. 3 5 है 15, तो नीचे आपका 15 आ गया, ऊपर आपका 5x plus 3x आ गया. प्लस माइनस 10 में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो इट बिकम्स माइनस 8. 8 माइनस का है, इक्वल्स टू के साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो इट बिकम्स पॉजिटिव 8. हेयर 5x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 8x एंड डिवाइड बाय 15 एज इट इज़ हमने कॉपी कर दिया. यहाँ पर 15 डिवाइड हो रहा है, साइड चेंज करेंगे, उधर लेके जाएंगे, राइट साइड पर लेके जाएंगे, तो इट बिकम्स मल्टीप्लाई बाय 15. और यहाँ पर 8 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. जैसे ही हमने साइड चेंज करी, लेफ्ट से राइट पर कन्वर्ट किया, तो इट बिकम्स डिवाइडेड बाय 8. सो वी कैंसिल 8 1 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा 8. सो हमारी x की वैल्यू क्या रह गई, रिमेन x इज इक्वल्स टू 15. Here we get the value of x, which is 15. Now we put the value of x in equation number 3, जो कि हम खुद फॉर्म करते हैं, उसमें अपनी इक्वेशन नंबर को सब्सटीट्यूट कर देते हैं. तो जैसे ही हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे अपने x की वैल्यू, x की जगह पर हमारे पास यहाँ पर 15 आ जाएगा. यहाँ पर नाउ वी टेक एलसीएम ऑफ माइनस 15 डिवाइड बाई 5 माइनस 2. So firstly we take the LCM of minus 15 divided by 5 minus 2. So it becomes minus 15. 2 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे. सो इट बिकम्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5. माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बिकम्स 10 एंड माइनस 15 एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में कॉपी कर दिया. डिवाइड बाय 5 भी एज इट इज़ कॉपी कर दिया, तो माइनस 10 माइनस 15 minus minus plus, so it becomes minus 25 divided by 5 as it is. 5 ones are 5 and 5 fives are 25. So here we get the value of y, which is a minus 5. Now हम अपना रिजल्ट मेंशन कर देते हैं. सो फर्स्टली वी गेट द वैल्यू ऑफ x, सो द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू 15 एंड y इज इक्वल्स टू minus 5. So this part is completed now. Ninth part B, it's your home task. Today's your home task is exercise 1E, question number 8 B and D part, and question number 9 B part. Thank you students for your patient listening. Stay home and stay safe. Allah Hafiz.